Hello students, you are most welcome once again in my YouTube channel ICSC Java 100%, where I am covering full computer application, that is Java language, for ICSC board student of class 9th and 10th. ऑपरेटर्स कंटिन्यूड। आज हम ऑपरेटर के बारे में और थोड़ा चर्चा करेंगे। Today's topic is type conversion. What is type conversion? Sometimes one data type is required to convert in another data type. One primitive type is converted to another primitive type. That is called type conversion. When one primitive data type is converted to another primitive data type, then it is called type conversion. Type conversions are two types. It is two types. First is implicit conversion. Implicit conversion. What is it? It is applied in इंटरमिक्स्ड एक्सप्रेशन। ये तब होता है जब इंटरमिक्स्ड मतलब कई डेटा टाइप एक एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होते हैं। एक एक्सप्रेशन के अंदर जब डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे फ्लोट, इंट, डबल तीनों एक साथ एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होते हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि रिजल्ट किस डेटा टाइप में आएगा। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है? इम्प्लिसिट कन्वर्जन ये इंटरमिक्स्ड एक्सप्रेशन में होता है, जिसमें जो कि कंपाइलर द्वारा ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है। कंपाइलर खुद ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है, इवेलुएट करता है, और रिजल्ट हाईएस्ट डेटा टाइप जो है जिसकी हायरार्की सबसे ज़्यादा है उसमें इसका रिजल्ट देता है। हायरार्की से मतलब है कि जिसके जो है इंटरमिक्स एक्सप्रेशन में जो जिसकी प्रेसिडेंस ऑर्डर ज़्यादा आता है, यानी जिसका इंटरमिक्स्ड एक्सप्रेशन में ज़्यादा वैल्यू होती है। जैसे इंट, फ्लोट, डबल में तीनों में सबसे ज़्यादा हायरार्की जो है वो किसकी है? डबल की है। यानी फ्लोट और इंट और डबल जब तीनों डेटा टाइप किसी एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होंगे तो रिजल्ट किस में आएगा? डबल डेटा टाइप में आएगा। See there, an implicit type conversion is the conversion performed by the compiler without programmer's intervention. Means there is no role of programmers. An implicit conversion is applied generally whenever different data types are intermixed. When different data types are intermixed, at that time implicit conversion is performed without the intervention of user. In an expression so as not to lose the information, it is beneficial. In this data type conversion, information is not lost. Information is not lost. Take the example. Suppose there is one data type int a, float b, comma c. Suppose this is initialized by 5 and b equal to 2, 2.3 and c equal to 2.2. Float b equal to 2.2. Now, if the expression is this one, c equal to a plus b, see, value of a is 5, that is integer constant. A is assigned by integer constant 5, and float b and c, where b is assigned by
B is assigned by 2.3. Now result C, is coming in C equal to A plus B. So what will be there? Because the result is coming in float, means float will promote the integer constant to its float type constant, means it will be 5.0 plus 2.3. 5.0 plus 2.3. The answer will be what? 7.3. This is also known as type promotion. Type promotion. Higher data type promote lower data type to its own type. Means when integer and float are intermixed, result will come to float type because hierarchy of the float type is more than integer type. Let me see another type conversion, that is known as explicit conversion. Explicit conversion, another type is explicit conversion or type कास्टिंग. इस कन्वर्जन में क्या होता है? ये यूजर डिफाइंड कन्वर्जन है. यूजर अपनी नीड के अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप को अपनी आवश्यकता अनुसार रिक्वायर्ड डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है. इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या था? वो कंपाइलर द्वारा हायर टाइप में प्रमोट हो जाता है, लोअर डेटा टाइप हायर डेटा टाइप में प्रमोट हो जाता है. जैसे उसमें क्या था? इंटीजर और फ्लोट जब इंटरमिक्स्ड है तो इंटीजर को कंपाइलर खुद फ्लोट में कन्वर्ट कर देता था. यहाँ क्या है? यूजर डिफाइंड, मतलब इसमें यूजर इंटरवेंशन होता है. यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है. इसी को टाइप कास्टिंग भी कहते हैं. जैसे हाँ, एक ड्रॉबैक है इसमें इंफॉर्मेशन लॉस्ट होती, इसमें इंफॉर्मेशन लूज होती. जैसे फ्लोट को अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन वाला पार्ट छूट जाएगा. तो ड्रॉबैक है. कभी कभी पूछता है डिफरेंस क्या है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में. डिफरेंस क्या है? इम्प्लिसिट कन्वर्जन परफॉर्म्ड बाय द कंपाइलर, explicit conversion performed by the user. In implicit conversion, there is no loss of information, while in explicit or typecasting, there is loss of information. This is the difference. If it is asked, you have to do that. See, explicit conversion, कैसे हम एक प्रिमिटिव टाइप को दूसरे प्रिमिटिव टाइप में यूजर कन्वर्ट करता है. जैसे हमने लिया है इंट ए, अब हमने लिखा ए इक्वल टू इंट इंट 2.5 प्लस 3. ये टाइप कास्टिंग है. जिस टाइप में कन्वर्ट करना है उसको पैरेंथेसिस में, उसको ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे. अगर फ्लोट में कन्वर्ट करना है किसी को तो यहाँ फ्लोट लिख देंगे. डबल में कन्वर्ट करना है किसी को तो डबल में लिख देंगे. और यहाँ कांस्टेंट की जगह वेरिएबल भी इस्तेमाल हो सकता है. यहाँ हमने डायरेक्ट कांस्टेंट लिख दिया है. तो यहाँ क्या होगा? ए की वैल्यू क्या होगी? ये टाइप कास्टिंग एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या करेगा? इस वाले को जिसके पहले ये लगा है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा. क्योंकि यहाँ इंट लिखा है, ये हो जाएगा 2 + 3. 2 + 3 यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5. यानी यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर रहा है. इसी तरह मान लीजिए आपने एक कैर वेरिएबल लिया, कैर ch. नाउ ch इक्वल टू कैर टाइप कास्टिंग 65. यहाँ कैर टाइप कास्टिंग 65. तो यहाँ क्या हो रहा है? देखिए ये क्या है? इंटीजर है. कैर एक वेरिएबल है ch. कैर में टाइप कास्टिंग हो रहा है, मतलब 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा. 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा तो यहाँ पे स्काई कोड आ जाएगा.
65 का स्काई कोड क्या होता है? ए, यानी ये हो जाएगा ए। ASCII कोड आपको आप जानते होंगे, इस स्ट्रिंग में भी पढ़ लेंगे। A to Z ASCII कोड जो होता है, ASCII कोड होता क्या है? जब कोई की हम प्रेस करते हैं तो उसकी एक सर्किट, कीबोर्ड सर्किट एक न्यूमेरिक वैल्यू जनरेट करता है। जब कोई की प्रेस की जाती है तो उसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू जनरेट होती है सर्किट द्वारा, उसको ASCII कोड होते हैं, ASCII कोड कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर कोड इस्तेमाल होते हैं, ASCII है, EBCDIC है, इस तरह के कई कोड इस्तेमाल होते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर क्या है? ASCII कोड है। तो ASCII कोड मैं बता दे रहा हूँ, ASCII कोड इसका 65 A to Z का कैपिटल में इसका ASCII कोड होता है 65 to 90 तक, 65 to 90 तक। और स्मॉल a to z का होता है 97 to 122। इसको हम और डिटेल में जब स्ट्रिंग पढ़ाएंगे, स्ट्रिंग हैंडलिंग, वहाँ पे और ASCII कोड बता देंगे आपको। न्यूमेरिक का क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर का कैसे निकालते हैं, वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ क्या हुआ, 65 को वो कन्वर्ट कर दिया कैपिटल लेटर में। ये हुआ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जो कि यूजर के अकॉर्डिंग परफॉर्म होता है। आइए देखते हैं और ऑपरेटर में और चीज़ें। अगला टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है? जब कई ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व हो। ऑपरेटर के सॉल्व होने का ऑर्डर ही क्या कहलाता है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस। यह आपके मैथमेटिक्स में बार्डमास पढ़े होंगे, बार्डमास मैथमेटिक्स में, कि बार्डमास को फॉलो करते ही हम कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व करते, नहीं तो रिजल्ट क्या होता है? गलत आ जाता है। उसी तरह जावा में भी ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। क्या हर लैंग्वेज में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस में क्या होता है? ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटर इज नोन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इट इज सिमिलर टू बार्डमास इन मैथमेटिक्स। जैसे मैथमेटिक्स में बार्डमास होता है। अगर हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ क्या होगा? रिजल्ट जो है इंटरमिक्स्ड ऑपरेटर टाइप का एक्सप्रेशन जो होगा उसमें गलत आ जाएगा। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस यहाँ पे है कि सबसे पहले जो सॉल्व होता है ऑपरेटर वो ये होता है पैरेंथेसिस और बिग ब्रैकेट। ये ग्रुपिंग के लिए इस्तेमाल होता है, आप जानते हैं, और ये एरे बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, आप जानेंगे आगे चल के। और कई ऑपरेटर जो आपके कोर्स में नहीं है उसको मैंने स्किप किया है। यह इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये लॉजिकल नॉट है, ये है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर। तो सबसे पहले ये ऑपरेटर सॉल्व होता है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे ये, इस तरह से सबसे लोएस्ट नंबर पे इक्वल ऑपरेटर है, इक्वल ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर 5वें नंबर पे सॉल्व होते हैं। तो ऑर्डर मतलब जब कई एक्सप्रेशन एक साथ मिले होंगे तो वहाँ पे ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन ऑपरेटर प्रेसिडेंस काम करेगा। जैसे क्वेश्चन सिंपल सा है, 2 + 2 / 2, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आप क्या आएगा? इसमें देखिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस में जाइए, प्लस है, प्लस से पहले प्रेसिडेंस किसका है? डिवीजन का, मतलब डिवीजन पहले होगा, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 + 1 = 3। आंसर इसका क्या आएगा? 3 ऑपरेटर प्रेसिडेंस में। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस को फॉलो करके एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं जब आउटपुट निकलता है। ये ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन दिया गया है। फर्स्ट नंबर पे ये पहले ये सॉल्व होता है, दूसरे नंबर पे ये सॉल्व होगा, तीसरे नंबर पे एक सॉल्व होगा, चौथे नंबर पे ये प्लस माइनस सॉल्व होता है, यानी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस पहले होता है, तब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है।
लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह है आपका कि मैथमेटिक्स में आर्डर जो है वो एक ऑपरेटर का एक ही है। यहाँ पे अब देखिए जैसे यह है कि अगर प्लस और माइनस दोनों आ गया, प्लस और माइनस, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस नंबर क्या है 4 है, प्लस और माइनस दोनों आ गया, तब कौन सा पहले सॉल्व होगा। जैसे इसी में है ये इनटू, डिवाइड और मॉड्यूलस, तीनों ऑपरेटर का प्रेसिडेंस नंबर 3 है, मतलब तीसरे नंबर पे ये तीनों है, तीनों का प्रेसिडेंस नंबर सेम है, तब कौन सा पहले सॉल्व होता है। इसको समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, ऑपरेटर प्रेसिडेंस में उसका प्रेसिडेंस नंबर तो होता है, लेकिन एक प्रेसिडेंस नंबर में कई ऑपरेटर आते हैं। जैसे मैंने प्रॉब्लम क्रिएट करी आपके सामने कि इनटू है, डिवीजन है और मॉडुलस है, तीनों अगर इस्तेमाल हो रहे हैं किसी एक्सप्रेशन में तो कौन सा सॉल्व होगा पहले। इसको समझने के लिए अगला टॉपिक हम आपको लेके चलते हैं जो है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या है, मैंने पिछले जस्ट अभी बताया कि जब ऑपरेटर प्रेसिडेंस एक प्रेसिडेंस नंबर पर कई ऑपरेटर आते हैं, जैसे मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, तीनों का ऑपरेटर प्रेसिडेंस नंबर सेम है, तो अगर ये तीनों या एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर नंबर प्रेसिडेंस नंबर सेम है, तो अगर ये मिले हुए हैं किसी एक्सप्रेशन में तो कौन सा पहले सॉल्व होगा। तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। इफ देयर आर मोर देन वन ऑपरेटर with same precedence number, if there are more than one operator with the same precedence number used in the expression, then they are evaluated either from left to right or from right to left. तो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी ये बताता है कि सेम प्रेसिडेंस नंबर ऑफ ऑपरेटर अगर है तो वो या तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है, लेफ्ट से शुरू होकर राइट साइड में जाता है, या राइट से शुरू होकर लेफ्ट साइड में आता है। तो ज़्यादातर ऑपरेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। मतलब अगर आपका इनटू, डिवाइड और मॉडुलस तीनों इस्तेमाल हो रहे हैं तो पहले जो है इनका चूंकि प्रेसिडेंस नंबर सेम है तो जो पहले पड़ेगा यानी लेफ्ट में जो पहले पड़ेगा वो पहले सॉल्व होगा। इसी तरह प्लस और माइनस एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं तो क्या होगा, जो पहले पड़ेगा, अगर एक्सप्रेशन में पहले प्लस पड़ता है तो प्लस सॉल्व होगा, अगर एक्सप्रेशन में पहले माइनस पड़ता है तो माइनस सॉल्व होगा। हमारे ख्याल से समझ गए होंगे कि प्रेसिडेंस नंबर अगर सेम है तो वहां पे क्या, जबकि मैथ में क्या होता है, एडिशन पहले होता है, सब्ट्रैक्शन बाद में होता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे जो पहले पड़ेगा, एडिशन पहले पड़ेगा तो एडिशन सॉल्व होगा, और सब्ट्रैक्शन पहले पड़ रहा है तो पहले सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। इसी तरह यहाँ पे है बॉड मास, पहले डिवीजन होता है फिर मल्टीप्लिकेशन होता है किसमें, मैथ में, जबकि यहाँ पे क्या है, जो पहले पड़ेगा वो सॉल्व होगा। तो ज़्यादातर ऑपरेटर की ऑपरेटर एसोसिएटिविटी वो बुक में दिया है क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट में जो पड़ेगा पहले वो सॉल्व होगा, ऐसे राइट साइड में बढ़ते जाएंगे। लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर की ऑपरेटर एसोसिएटिविटी ये क्या होती है, इसकी राइट टू लेफ्ट होती है, राइट टू लेफ्ट। जैसे अगर हमने लिखा है इंट ए इक्वल टू 2 इंटू 3, यहां क्या होगा, पहले ये मल्टीप्लाई होगा तब ये ए में जाएगा, यानी राइट टू लेफ्ट हो रहा है। ये ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है कि अगर ऑपरेटर प्रेसिडेंस नंबर सेम है किसी ऑपरेटर के तो वो कैसे सॉल्व होंगे। जैसे यहाँ दिया है 2 + 5 × 3/4 - 10, ये एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने बताया कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस में क्या होता है, प्लस और माइनस से हायर प्रेसिडेंस किसका है,
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पहले सॉल्व होगा, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। अब ये प्रश्न उठता है कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगा डिवीजन होगा, तो यहाँ पे लेफ्ट में इधर से चलिए, लेफ्ट में पहले क्या पढ़ रहा है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहा है, तो इसलिए पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। अगर डिवीजन पहले पढ़ता तो पहले डिवीजन सॉल्व होता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 + 5 × 3 15/4 - 10। ये हो गया 2 प्लस, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए 15/4 - 10। अभी भी क्या है, ये बचा हुआ है प्लस और माइनस का ऑपरेटर प्रेसिडेंस, उससे ज्यादा किसका होता है, डिवीजन का, यानी पहले डिवीजन होगा। तो क्या होगा 2 + 15/4। मैंने कहा इंटीजर है, मैं बता चुका हूँ इंटीजर जब डिवाइड होगा तो इंटीजर में आंसर आएगा। क्वोशिएंट क्या आएगा इसका, 15/4, 4 × 3 = 12, यानी 3 आएगा। आपको रिमाइंडर से मतलब नहीं है। ये क्या करता है, डिवीजन ऑपरेटर क्वोशिएंट देता है। तो 15/4 चूंकि इंटीजर है तो यह हो गया 15/4, 4 × 3 = 12। तो यहाँ क्वोशिएंट क्या आ रहा, 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3। 15/4 = 3 - 10। अब क्या होगा, अब डीवी प्लस और माइनस बच रहा है, दोनों का प्रेसिडेंस नंबर सेम है, तो क्या होगा, पहले प्लस होगा क्योंकि पहले प्लस पढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा 2 + 3 5 - 10। अब ये माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। इस तरह से ऑपरेटर एसोसिएटिविटी को अगर ध्यान में रखेंगे तो आउटपुट वाले क्वेश्चन में आपका आंसर गलत नहीं आएगा। ऑपरेटर्स में एक्सरसाइज भी बहुत हैं, उनको हम ये कवर करने के बाद फिर हम इस लेसन के आउटपुट का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। अभी मैंने प्रोग्रामिंग नहीं शुरू की है। प्रोग्रामिंग जावा पढ़ने का एक सीक्वेंस है, अगर उस सीक्वेंस को आप फॉलो करेंगे तो समझ में आसानी से आएगा। मैं उसी सीक्वेंस के अनुसार चल रहा हूँ जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ाया हूँ। तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि सीक्वेंस को अगर फॉलो करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी सब हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you can get the latest video. Thank you.